मानवाधिकार एसोसिएशन जिला पश्चिम बर्धमान के जिला कार्यालय में आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती मनाई गई। इस जयंती के शुभ उपलक्ष्य पर एसोसिएशन की तरफ से मुफ्त फिजियोथेरेपी कैंप का आयोजन किया गया एवं इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित रहे चितरंजन थाना ओसी पल्लव चौधरी महाशय, साथ ही समाजसेवी भोला सिंह। अतिथियों के हाथों से माल्यार्पण करवाया गया एवं पुष्प देकर उन सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। আজকের দিনটি প্রতি বছর আমরা উদযাপিত করছি। আমরা জানি বি.আর. আম্বেদকর একজন সোশ্যাল রিফর্মিস্ট এবং জুরিস্ট। তিনি আমাদের সমাজে যে বৈষম্যহীন সমাজের চিন্তাভাবনা করেছে সেটা আমরা সেই জন্যই আজকে আমরা সবাই এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাই এক জায়গায় একসাথে আমরা আজকে নিজেদের কথাবার্তা বলতে পারছি শুধুমাত্র ওনার জন্য। সংবিধানে উনি বিভিন্ন ধরনের কিছু কথোপকথন রেখে গিয়েছে যেটা আমাদের প্রতিটা সময় আমাদের কাজে লাগছে। যেমন আর্টিকেল 14 বলছে ইকুয়ালিটি বিফোর ল, যে আমাদের সমাজে প্রত্যেকটি লোকের আইনের সমান অধিকার রয়েছে। অ্যাজ এ প্রফেশনাল হিসেবে আমি আইনের সাথেই জড়িত, সেই জন্য আমি ভালো করেই জানি যে উনি কীভাবে সমাজে এই অবদানটা রেখে গিয়েছে। ওনার কথা সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি সময় আমরা নানাভাবে স্মরণ করে চলেছি এবং আগামী প্রজন্মকেও এভাবেই স্মরণ করে যাবে, এটাই আমি আশা করছি। নমস্কার। অঙ্গদ স্যারকে অনেক ধন্যবাদ। এই সংক্ষিপ্ত বক্তৃতাকে সত্যি কথা আজকে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে যে সাম্যবাদ যদি কেউ প্রতিষ্ঠা করে থাকেন ভারতবর্ষে, তাহলে এই দলিত সম্প্রদায় থেকে উঠে আসা এই একজন মানুষ, তিনি সর্বযুগে সব সময় যিনি 24 ঘন্টা মানুষের জন্য সব সময় আছেন। এটা খুব বাস্তব, আমরা চোখে দেখি, মুখে বলা নয়। সেই পরিচিত নাম, তিনি হলেন ভোলা সিং, আমাদের প্রিয় এবং সমস্ত মানুষের কাছে উনি প্রিয়। এবং উনি যে সব সময় মানুষের পাশে থাকে এটা কিন্তু ওনার সামনে বলে করবো না, প্রশংসা করবো না। আমরা সব আম্বেদকর যে সংবিধানটা লিখেছিলেন ওই সংবিধানের উপর দেশ চলছে আজকে। ওনার প্রেরণাতে দেশ চলবে, ওনার সংবিধানেই চলবে দেশ, কেউ সংবিধান পাল্টাতে পারবে না। এই প্রতিক্রিয়া আমাদেরকে সবাইকে নিতে হবে। चितरंजन ओसी अभी निरीक्षण कर रहे हैं जो मानवाधिकार एसोसिएशन जिला कार्यालय में जो फिजियोथेरेपी कैंप किया गया है, वहाँ पे जो भी पेशेंट है वो अपना आपको दिखा रहे हैं। উনি নিজের সময় বার করে আমাদের অ্যাসোসিয়েশনে উপস্থিত হয়েছে বাবা সাহেবের ডক্টর ভীমরাও আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী পালন করে। তারপরে আমি জানাই আমাদের মেম্বারকে সবাইকে ধন্যবাদ। থার্ড জানাই যে আজকে যে আমাদের ফিজিওথেরাপি করছেন মেডিকেল বিভাগ থেকে, উনি যে এত সুন্দর উদ্যোগ নিয়েছেন আমাদের সাথে মিলে পেশেন্টকে দেখার জন্য, ওনাকে খুব খুব ধন্যবাদ। বাবা সাহেবের দুটো কথা বলবো। শিক্ষা কি জিনিস সে বাবাই আমাদেরকে শেখায়। একটা আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি। বাবা সাহেব বিদেশ যাচ্ছিলেন একটা ট্রেনে রানিং হচ্ছে 18 ঘন্টা। 18 ঘন্টায় বাবা সাহেব বই পড়তে গেলেন, না এইদিকে তাকালেন না ওই দিকে তাকালেন, পুরো 18 ঘন্টায় পুরো পেজ, তার মধ্যে 5-6টা বই উনি পড়ে শেষ করলেন। এবার যখন বিদেশ যাওয়ার সময় ওনাকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো कि बाबा साहब तो इतने बिजी थे कि किताबें पढ़ रहे थे, तो बाबा साहब का कहना था कि समय का उपयोग करना चाहिए, समय का दुरुपयोग नहीं।
जो हम जो समय ट्रेन में बैठे हुए हैं, इस समय को मैंने अपने शिक्षा में यूटिलाइज किया है। तो एजुकेशन एक ऐसा चीज है, ना तलवार से, ना बंदूक से, ना किसी की धार से। अगर किसी को मारा जा सकता है तो वो कलम की ताकत से मारा जा सकता है। तो कलम में ही है मेन पावर। आज पूरा विश्व चल रहा है, वो कलम की ताकत में चल रहा है। हम लोग संविधान को मान रहे हैं, संविधान के बदौलत पूरा देश चल रहा है। वो एक कलम की ताकत है जो बाबा साहब दिखा के चलेंगे और लिख के चलेंगे। सबसे बड़ी बात कि कास्टिज्म की बात जब आती है तो लोअर कास्ट में ऐसे समुदाय से बाबा साहब बिलोंग करते हैं। उस समय में कितना छुआछूत होता था एक जाति हिसाब से। आज के समय में जिस फील्ड में हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है, ना के बराबर। हम लोग सब भाई भाई मिलजुल के रह रहे हैं। लेकिन आज कहीं कभी भी देखिएगा, यूपी जैसा जगह हुए, राजस्थान हरियाणा जैसा जगह हुआ, वहाँ पे अभी भी जाति प्रथा बहुत ज़्यादा चल रही है। यूपी में कुछ दिन पहले आपने कारण देखा होगा कि एक लेडीज का रेप करके उसको जला दिया गया SC/ST समुदाय से। तो बाबा साहब उस समय कितना स्ट्रगल किए होंगे। अगर अपने अंदर में अगर ये सोचिएगा तो आपको ये प्रतीत होगा कि उस समय मैंने क्या होगा। अभी जो देख रहे हैं इससे, और जो टीवी में भी दिखाता है, बीच में भीमराव अम्बेडकर सीरियल चालू हुआ था NDTV पर, अम्बेडकर, उसमें बहुत सा चैप्टर है जो नहीं दिखाया गया। तो उस पीढ़ी से उठ के बाबा ने शिक्षा के दम पे बोल के अपने पिता से बोला कि बाबा आज मुझे ये किताब पढ़ने नहीं दे रहा है, लेकिन मैं एक ऐसी किताब लिख के जाऊंगा जो पूरा विश्व पढ़ेगा। तो आज वो ऐसी किताब लिख के चल गए जो आज पूरा देश मान रहा है, और पूरा देश उसी के बाद बदौलत चल रहा है। तो यही बोल के मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। আমাদের একজন সদস্য হিসাবে এখানে উপস্থিত হয়েছেন মাইকেল মার্টিন। ওনাকে অনুরোধ করব বাবা সাহেবের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করার জন্য। আমাদের সদস্য শঙ্কর ঘোষ কেউ আছে? अनेकों पेशेंट मानवाधिकार एसोसिएशन के इस कैम्प में लाभ ले रहे हैं, और आप सभी लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सभी उपस्थित हैं, लाइन लगा के बैठे हुए हैं, जो अपने अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं, और नंबर वाइज सभी को अंदर में भेजा जा रहा है चिकित्सा हेतु। तो एसोसिएशन के जितने पदाधिकारीगण, सदस्यगण लगे हुए हैं ताकि समाज को एक अच्छी दिशा में वतन मेरे वतन है वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, ये लेकिन ज़्यादा आपका स्टार्टिंग में तो हो ही रहा है। मैंने उतना ही नहीं किया था। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे
वतन, है वतन, मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। है वतन मेरे वतन, मेरे वतन।